Dear students, I welcome you all to this new video lesson in the e-learning series for the subject of Information Technology, class 10th. Dear students, from today onwards we are starting the subject specific portion, that is part B of this Information Technology curriculum. In the previous part, that is part A, we have discussed employability skills in 5 units. Those units combined will be of 10 marks in your board examination, while this part B, having 4 units, will be having a combined weightage of 40 marks, and the remaining 50 marks will be of practicals. So in this, the first unit, this is digital documentation and its advanced version. The basic version you have studied in class 9th. Now here we will be dealing with the advanced version of this digital documentation part. As per your syllabus, this digital documentation part is of 8 marks, and here we have to learn, in this we have these 5 sessions here. And now, while focusing on the first session, that is creating and applying styles in the document, we will be studying the styles categories in the word processor, styles and formatting window, fill format, creating and updating new style form selection, load style from template or another document, creating a new style using drag and drop, and applying styles. And in the practical session, you must know all these points that are mentioned in your syllabus. So the software that we are using for this digital documentation advanced version is OpenOffice. Why OpenOffice? Because it is an open source, it is freely available, and anyone can download and use it. This is the screen of Apache OpenOffice. Here you find many options related to your office organization. In this first unit, we will be dealing with this text document part, and you know that this text document part is called OpenOffice Writer. Okay, this thing we have discussed in class 9th. Okay, so let's start this first unit. In this first unit, we have create and apply styles in the document. How to create and apply different types of styles in a document. Please note that in this part, that is part B that we are starting from today, you have to be aware about both the theoretical as well as the practical aspects of all the points being discussed, because it is subject specific portion and it will be having more weightage in your examination. So you must be ready with the definitions and also the practical aspects, that how to apply those things practically. Okay, so let's start. A style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. This is the definition of style. Okay, you should note it. A style is a set of formats that you can apply to selected elements in your document so that you can quickly change their appearance. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में आपने कुछ लिखा है और आप उसकी बहुत जल्द से उसके अपीयरेंस में बदलाव चाहते हैं, तो यू कैन अप्लाई अ स्टाइल. तो स्टाइल में क्या है, बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको बने हुए मिलेंगे. व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल, यू अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. तो उस स्टाइल में कई चीज़ें डिफाइंड होती हैं. उस स्टाइल में उसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट का टाइप,
बैकग्राउंड कलर, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप सारी चीज़ें अपने उस पोर्शन में अप्लाई कर देते हैं। स्टाइल्स आर logical attributes. Using style means that you stop saying font size 14 point Times New Roman bold centers और इस पूरे की जगह कि क्या फॉन्ट का साइज है, क्या टाइप है, क्या नाम है, इसकी जगह आप एक स्टाइल नेम बोलेंगे, दैट इज टाइटल, क्योंकि आपने उस टाइटल नाम के स्टाइल में वो सब पॉइंट्स पहले से डिफाइन कर दिए हैं. सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड अंडर दैट नेम, that style name. Okay, in other words, style mean that you shift the emphasis from what the text looks like to what the text is. Styles help improve consistency in a document. They also make major formatting changes easy. कई सारे फॉर्मेटिंग चेंज अगर आपने करने हैं तो आपने अगर उनको पहले से करके किसी एक नाम के अंदर सेव कर रखा है तो आप उसको अप्लाई कीजिए और वो सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे. ओके, तो एग्जांपल देखिए, यू मे डिसाइड टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स. ओके, फॉर अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट दिस सिंपल टास्क कैन बी प्रोहिबिटिव. स्टाइल्स मेक द टास्क ईजी. तो अगर आप चाह रहे हैं कि सारे पैराग्राफ का इंडेंटेशन लेवल एक सेट हो जाए या टाइटल्स जितने भी उनका फॉन्ट एक अलग सेट हो जाए, तो अगर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसमें ये सब करना आपका बहुत टीडियस हो सकता है, लेकिन स्टाइल से ये काम आसान हो जाता है. ओपन ऑफिस में कौन कौन सी स्टाइल्स हैं देखिए. द फर्स्ट स्टाइल इज पेज स्टाइल. इसमें क्या क्या होता है, इसमें मार्जिन, हेडर, फूटर, बॉर्डर और बैकग्राउंड. इन कैल्क, जो कि इसका स्प्रेडशीट वर्जन है, पेज स्टाइल्स ऑल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस फॉर प्रिंटिंग शीट्स. ठीक है, लेकिन जब आप राइटर देखेंगे जिसका वर्ड एडिटर है, उसमें अगर आपने पेज स्टाइल इंप्लीमेंट करनी है तो पेज स्टाइल में क्या क्या आएगा, मार्जिन, हेडर, फूटर, बॉर्डर और बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. पैराग्राफ स्टाइल में इट विल कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ अपीयरेंस. कैसे? टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर. ओके, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. तो सबसे बड़ा क्या होता है उसमें, पेज. पेज के अंदर फिर पैराग्राफ. पैराग्राफ के बाद थर्ड इज कैरेक्टर स्टाइल्स. इट इफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ. आपने एक लाइन सेलेक्ट की या 2-3 वर्ड सेलेक्ट की, उसमें कोई आपने इफेक्ट डालना है, दैट इज कॉल्ड, उसमें कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर स्टाइल. उसमें क्या चेंजेस होंगे, फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक, ये सब फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं. सो दैट विल बी कॉल्ड कैरेक्टर स्टाइल. देन फ्रेम स्टाइल. दीज आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स. अगर आपने एक फ्रेम इंक्लूड किया हुआ है, एक सेपरेट आपने बॉक्स इंक्लूड किया हुआ है, एरिया इंक्लूड किया, दैट इज कॉल्ड फ्रेम. उसमें अगर आप कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड फ्रेम स्टाइल. इसमें क्या क्या होगा, उसका रैपिंग टाइप, उसका बॉर्डर, उसका बैकग्राउंड और उसमें कितने कॉलम्स यूज होने हैं वो. नेक्स्ट टाइप की स्टाइल है आपकी नंबरिंग स्टाइल. ठीक है, इसमें क्या होगा, इट विल अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट करेक्टर्स एंड फॉन्ट्स टू नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट. जब आप बुलेट्स लगा के लिखते हैं या नंबरिंग करके लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे कोई स्टाइल अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड नंबरिंग स्टाइल. नेक्स्ट इज सेल स्टाइल. इट विल इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, ओके, एंड सेल प्रोटेक्शन. तो अगर आपने मान लिया कोई टेबल उसमें इंक्लूड की हुई है अपने राइटर में और वहाँ आप सेल में कोई चेंज करना चाहते हैं पर्टिकुलर, उनमें ये चीज़ें सारी शामिल हैं, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड एक्सेट्रा, तो उसको कहा जाएगा सेल स्टाइल. ओके, नेक्स्ट इज ग्राफिक्स स्टाइल. ये कहाँ पे यूज़ होगी, जहाँ पे आप कोई ड्राइंग या कोई आपने एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट इंक्लूड किया होगा. सो ग्राफिक स्टाइल्स इन ड्राइंग्स एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, shadowing, transparency, font, connectors, dimensioning and other attributes related to that graphical object. और लास्ट स्टाइल जो हमारे ओपन ऑफिस राइटर में है, दैट इज प्रेजेंटेशन स्टाइल. इट विल इंक्लूड एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट, इंडेंट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स. सो दीज आर द स्टाइल्स दैट आर
अवेलेबल इन दिस ओपन ऑफिस। ओके, तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि स्टाइल कौन कौन सी मौजूद है हमारे पास, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उन स्टाइल्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, सो द ओपन ऑफिस प्रोवाइड सेवरल वेज फॉर यू टू सेलेक्ट स्टाइल्स टू अप्लाई। ओके, तो सबसे पहला है यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। क्योंकि ये GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा टैब बना के आपको एक पॉपअप बॉक्स दे देते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कोई भी काम करने के लिए उसके मेन्यू सिस्टम क्या है वो याद रखना होगा। जैसे आपने स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो खोलनी है तो उसके लिए एक तो शॉर्टकट कीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट कौन सी की दबा के आप वो बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप मेन्यू के थ्रू जाएंगे तो आपको किसके अंदर कौन से मेन्यू और कौन से सब मेन्यू में जाना है, ये दोनों बात आपको हमेशा याद रखने होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बार। ये तो एक ऑप्शन है आपके पास कि ये वाला आइकन आप यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि फॉर्मेट मेन्यू के अंदर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग सब मेन्यू में आप जाएं तो वहाँ से भी ये विंडो खुल सकती है, या आप F11 दबाएंगे तो भी, ये शॉर्टकट की है, इसको आप याद रखिएगा कि ये स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए वी हैव द शॉर्टकट की एज F11। तो अगर आप F11 की दबाएंगे तो डायरेक्ट आपकी स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग वाली ये विंडो खुल के आ जाएगी जो आपको यहाँ दिख रही है। ओके, सो दिस विंडो displays the styles and formatting that are available for OpenOffice. ओके, तो ये आपका ओपन ऑफिस राइटर है। तो यहाँ के कॉर्नर पे देखिए आपको ये स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का मेन्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स खुल गया। ठीक है, ये डॉकेबल है, आप इसको खिसका के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, या अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो डायरेक्ट आप कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे तो भी आपका ये मेन्यू वही खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ से भी फॉर्मेट के अंदर ये आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। F11 शॉर्टकट की, और उसके बाद उसका जो प्रॉपर मेन्यू सिस्टम है वो है फॉर्मेट, और उसके अंदर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्लियर? ग्रेट। तो आप देखिए इस फिगर में जो आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो दिख रही है उसमें आपको यहाँ देखिए ये पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। ओके, और यहाँ पे आपके पास फिल फॉर्मेट मोड है, और यहाँ पे आपके पास नई स्टाइल अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, इनमें सब में स्टाइल्स जो हैं पहले से ही बना के आपको दी गई हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी एक नई स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये है आपका फिल फॉर्मेट स्टाइल। ओके, तो ये आपका विंडो हो गई स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग वाली। शॉर्टकट की प्लीज़ बताइए। वेरी गुड, F11। मैंने आपको बताया कि दिस डॉकेबल है, सो यू कैन मूव दिस विंडो टू अ कन्वीनियंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। अपने हिसाब से इसको खिसका सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए की दी हुई है, देखिए होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड ड्रैग इट बाय द टाइटल बार टू वेयर यू वांट इट टू बी डॉक्ड। और आपको मैंने दिखाया कि उसमें कई सारी स्टाइल हैं, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर मौजूद जो लिस्ट ऑफ स्टाइल्स जो पहले से ही हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल, पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज, and then double click on the name of the style in one of these style. Okay,
तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट मौजूद है, हमने जहाँ पे भी उस टेक्स्ट या उस स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है कैरेक्टर स्टाइल के अलावा, क्योंकि उसकी थोड़ी टेक्निक अलग है, तो आपको उस इंसर्शन पॉइंट पे क्लिक करना है और यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर, डबल क्लिक कर देंगे उस पर्टिकुलर जो भी स्टाइल आप चाहते हैं, तो वो उस स्टाइल में आपका चेंज हो जाएगा। कैन चेंज इट इस दिस वन, डिफ़ॉल्ट, सिग्नेचर, टेक्स्ट बॉडी। तो आपने ये करना है, जहाँ पे भी आपने उसको इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जिस भी स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसे वहाँ पे आप डबल कीजिए, तो वो डबल क्लिक करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप कैरेक्टर स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको वो कैरेक्टर्स, जिस कैरेक्टर्स केवल फिक्स एक सेलेक्टेड लेंथ के लिए अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए पहले आपको उन कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद जाके फिर आप उस स्टाइल पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है उसको इम्प्लीमेंट करने का। नाउ फिल फॉर्मेट मोड, जो आपने वहाँ बकेट जैसी देखी थी, ये वाली बकेट आपने देखी थी, उसका कैसे यूज़ होगा। Fill format mode is used to apply style to many different areas quickly without having to go back to the style and formatting window and double click every time. तो अगर आप एक ही जैसी स्टाइल अपने किसी डॉक्यूमेंट में कई जगह इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये फिल फॉर्मेट मोड यूज़ करना होगा, जिससे कि आपको बार बार वहाँ जाके डबल क्लिक ना करना पड़े। ओके, तो दिस इज़ वेरी यूजफुल व्हेन योर पैराग्राफ्स आर स्कैटर्ड, जो सेल्स वगैरह हैं उसमें आप दूर दूर फैली हुई हैं, तो आप इस फिल फॉर्मेट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस फॉर्मेटिंग विंडो को खोलेंगे। यू शुड नो द शॉर्टकट की, दैट इज़ F11, एंड सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई। उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लीजिए पहले और उसके बाद फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई पैराग्राफ, अगर पेज किस पे भी अप्लाई करना है फ्रेम पे, सो माउस को उस पैराग्राफ के ऊपर लेके जाइए और क्लिक कीजिए। ठीक है, बट टू अप्लाई ए कैरेक्टर स्टाइल होल्ड डाउन द माउस बटन वाइल सेलेक्टिंग द कैरेक्टर्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने कैरेक्टर स्टाइल इंप्लीमेंट करनी है तो माउस को आप दबा के रखिएगा और उतने कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिकिंग ऑन अ वर्ड अप्लाइज द कैरेक्टर स्टाइल फॉर दैट वर्ड। ओके, so you should repeat step number 3 until you made all the changes for that style. और जब आपने उस मोड से बाहर निकलना हो तो वापस उसी बकेट पे क्लिक कर दीजिए या एस्केप की दबा दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अगर आपने किसी फिल फॉर्मेट मोड से बाहर निकलना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो एस्केप। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है कि जब भी ये मोड एक्टिव होगा, राइट क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट अंडूज द लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। अगर आपने राइट क्लिक कर दिया कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में तो आपका जो लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन था वो अंडू हो जाएगा, वो हट जाएगा। सो इसलिए राइट क्लिक पे ध्यान रखें कि आप राइट क्लिक ना कर दें कहीं गलती से। लेट अस सी द एग्जांपल। तो कैसे हो रहा है देखिए, ये आपने स्टाइल फॉर्मेटिंग में गए, आपने मान लिया यहाँ से प्लेस होल्डर वाला ये कैरेक्टर स्टाइल है, इस पर आपने क्लिक किया और आपने इसको फिल फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपकी ये बकेट तैयार हो गई। आपने जिस पर्टिकुलर वर्ड पे, क्योंकि अब आप कैरेक्टर स्टाइल पे हैं तो आपको पूरा वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड भी इसी स्टाइल में हो जाए। तो देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन अगर आपने गलती से राइट क्लिक कर दिया तो ये देखिए, मैंने राइट क्लिक किया और मेरा पुराना वाला जो लास्ट एक्शन था वो अंडू हो गया, फिर दबाया तो वो वाला एक्शन भी अंडू हो गया, और एक बार फिर राइट क्लिक दबाया तो मेरा फर्स्ट वाला एक्शन भी अंडू हो गया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि राइट क्लिक ना हो जाए आपका। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये आपने सेलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा उस फॉर्मेट में अप्लाई हो गया। तो जहाँ जहाँ आपने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप वहाँ पे इसको सेलेक्ट करते जाइए और ये आपका उस फॉर्मेट को वहाँ पे फिल कर देगा। ठीक है ना, आसान। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू कस्टम स्टाइल्स। अपनी स्टाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन।
You can create a new style by copying an existing manual format. This new style applies only to this document. It will not be saved in the template. तो अगर आप चाहते हैं केवल इसी डॉक्यूमेंट के लिए वो स्टाइल रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. क्या करेंगे? ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट. In the document, select the items you want to save as a style. In the styles and formatting window, click on the new style form selection icon. देखिए कैसे हुआ है. ये क्रिएट स्टाइल, आप वहाँ पे नाम दे सकते हैं उसको. ठीक है. So in the create style dialog, we can type a name for the new style. The list shows the name of existing custom style. अगर आपने पहले से कोई बनाई होगी तो उसका नाम भी दिखाई देगा और आप ओके करके उसको सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आप पहले से कुछ लिखा हुआ है आपने, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड इट विल बी एडेड एज अ न्यू स्टाइल. Next we have dragging and dropping to create a style. You can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style. तो करना कैसे है, आपने जो भी टेक्स्ट आपने एज ए स्टाइल सेव करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो तक लाके खींचिए. माउस से उतना सेलेक्ट किया और उसको खींच के उस विंडो पे ले आए. अगर वहाँ उस विंडो में पैराग्राफ स्टाइल एक्टिव होगी तो पैराग्राफ स्टाइल विल बी एडेड टू द लिस्ट, और अगर कैरेक्टर स्टाइल एक्टिविटी होगी तो कैरेक्टर स्टाइल नहीं ऐड हो जाएगी. तो आपने कुछ बढ़िया सा फॉर्मेटिंग बनाई अपनी एक डॉक्यूमेंट में और उस पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि ऐसे ही फॉर्मेटिंग ये मेरी सेव हो जाए. तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, उसको ड्रैग करके उस विंडो तक जो आपकी फॉर्मेटिंग विंडो है F11 से जो आई थी उस पर ड्रॉप कर दीजिए. तो अगर आपकी पैराग्राफ विंडो ऊपर टैब खुला हुआ है तो वो नया ऐड हो जाएगा. अगर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वाला टैब खुला है तो वो एक नई स्टाइल ऐड हो जाएगी. ठीक. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई द स्टाइल्स. तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो ओपन ऑफिस में कई तरीके हैं आपकी स्टाइल्स को मॉडिफाई करने का. प्री डिफाइंड स्टाइल भी हैं और कस्टम स्टाइल भी हैं. सो फर्स्ट इज अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सेलेक्शन और लोड और कॉपी फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट. आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, या तो नई स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्शन से. पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक आपको जो भी आपने जैसा भी लिखा है उस एरिया को या उतने वर्ड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उसको आप न्यू स्टाइल से एक नई स्टाइल बना लीजिए. या आप क्या कीजिए, इतने पोर्शन को यहाँ से उठा के इस पर ड्रॉप कर दीजिए. तो इसको ड्रॉप करते ही वो आपकी एक नई कैरेक्टर स्टाइल ये आ जाएगी. उसको आप नाम दे दीजिए तो वो स्टाइल में सेव हो जाएगी. और उसके अलावा इसमें दो ऑप्शन और हैं हमारे पास. वी कैन अपडेट द स्टाइल और वी कैन लोड अ स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट. ओके. सो पहला था अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन और लोड कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट. ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी स्टाइल में चेंज करते हैं वो केवल इसी डॉक्यूमेंट तक एप्लीकेबल रहता है. ओके. अगर आपने स्टाइल को और डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज करना है, यू नीड टू चेंज द टेम्पलेट और कॉपी द स्टाइल्स इनटू अनदर डॉक्यूमेंट्स. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो हम देखते हैं अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन. क्या करना है, सबसे पहले स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करेंगे. इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट एन आइटम दैट हैज़ द फॉर्मेट यू वांट टू अडेप्ट एज अ स्टाइल. इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट. ओके. हल्का सा एक जैसे ये आ रहा है, मान लिया ये पैराग्राफ स्टाइलिंग है, इसमें डिफ़ॉल्ट वाले को आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक. ओके. ठीक है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर से सुन लीजिए. पहले आपने उस डॉक्यूमेंट में उस आइटम को सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट को आप स्टाइल के तौर पे सेव करना चाहते हैं. ठीक है. फिर क्या करेंगे, उस विंडो में जिस स्टाइल को आप एक्चुअली चेंज करना चाहते हैं उस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो वो अप्लाई हो जाएगा. उसके बाद आपने क्या करना है, देन लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फॉर्म सिलेक्शन. ओके. और यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक ये अपडेट स्टाइल वाला ये मेन्यू मैंने आपको दिखाया था अभी, वो दिख जाएगा.
ठीक है। तो वहाँ से वो आपकी ये जैसे मान लिया आपने डिफ़ॉल्ट वाली पे क्लिक किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी। क्या करना है फिर से सुन लीजिए। पहले आपको एक्चुअल जिस आपने डॉक्यूमेंट में जिसको सेलेक्ट कर रखा है उसको आप सेव करना चाहते हैं उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जिस स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में जिस स्टाइल को आप एडिट करना चाहते हैं उस पर एक क्लिक कीजिए, वन, ओके, नॉट डबल क्लिक, सिंगल क्लिक। फिर आप यहाँ पे इस वाली प्लस वाली विंडो पे क्लिक करके यू कैन क्लिक ऑन अपडेट स्टाइल। तो वो स्टाइल जो ये डिफ़ॉल्ट वाली है ये अपडेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव लोडिंग स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी और बाहरी डॉक्यूमेंट से कोई ये दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया हो उसमें कोई स्टाइल है जो आपकी फेवरेट हो, आप उसको यहाँ इंपोर्ट करवाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। या कोई दूसरी टेम्पलेट आपने कहीं से सेव कर रखी हो, डाउनलोड की हुई हो, उसको भी आप यहाँ इंपोर्ट करवा सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए जिसमें आप स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं। ओके, फिर आपने उस विंडो को खोलना है, फिर लोड स्टाइल वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप अभी देख रहे थे लोड स्टाइल वाला मेन्यू पे, सब मेन्यू पे आपने क्लिक करना है। तो आपका ये ऐसा एक खुल के आएगा सब मेन्यू, देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमने देखा, यहाँ पे आपने न्यू स्टाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने लोड स्टाइल पे क्लिक किया तो ये आपका ऐसे खुल के आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ये सब चीज़ें इसमें कैटेगरीज आ रही होंगी। फिर ऑन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स फाइंड एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम। तो आपने यहाँ पे ये जो फ्रॉम फाइल वाला ऑप्शन है इसमें से उसको सेलेक्ट कर लेना है जो आप स्टाइल चाहते हैं। ओके, सेलेक्ट द कैटेगरीज ऑफ स्टाइल टू बी कॉपीड, select overwrite if you want the style being copied to replace an style on the same names, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ से फ्रॉम फाइल में से, मान लिया आप किसी फाइल में आपका पड़ा हुआ है या कोई टेम्पलेट्स हैं तो आप फ्रॉम फाइल में से उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए जिस फाइल में आपका वो फॉर्मेट पड़ा हुआ है जिसको आप यहाँ बनाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं। और फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट द कैटेगरी, जो कैटेगरी आप जिस कैटेगरी में है, ये सारी कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी में उसको रखना चाहते हैं। और अगर आप इस पुरानी स्टाइल को ओवरराइट करना चाहते हैं तो आप इस ओवरराइट वाले बॉक्स पे भी क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसका ओके करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। टू कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट क्लिक द फ्रॉम फाइल, जैसे मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी editor yet, so you can download this OpenOffice. It is available for free, Apache OpenOffice. so इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट जिसमें वर्ड एडिटर है उसका नाम है राइटर, और उसमें ये सारे आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो थ्योरी में आपको जो याद करना है वो तो डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज़ स्टाइल, कितने टाइप्स की स्टाइल आपके OpenOffice में हैं, और आपको जो मेन्यू है जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे होंगे इस वाले में और इसके आगे जितने भी हम सेशंस करेंगे उसमें जो भी आप विंडो ओपन करना चाह रहे हैं उसके दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, एक शॉर्टकट की और एक मेन्यू सब मेन्यू मेथड। तो वो दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के लिए आपके पास मेन्यू और सब मेन्यू के थ्रू क्या ऑप्शन है और शॉर्टकट की क्या है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी हैव सम एक्टिविटी, ये आप करके देखिएगा। क्या करना है, रिज्यूम और बायोडाटा आपने लिखना है और उसमें अलग अलग स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, और एक पैम्पलेट साइबर अवेयरनेस पे बना के देखिए और उस पर डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं उस पर इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं हमारे पास उसमें देखिए, what are styles, what are the advantages of using styles, give any 4 styles supported by openoffice.org, how can we create our own style। तो ये चीज़ें आ सकती हैं, उसमें से आपको ये भी दिया जा सकता है कि आपको 5-6 स्टाइल्स दे दी, उनमें से कौन सी ऐसी है जो ओपन ऑफिस सपोर्ट नहीं करता है, तो ये सब या करता है, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट सेशन ऑन यूनिट नंबर 1।
and we will be meeting in the next video lesson.